electric field for conducting sphere. Conducting sphere or hollow sphere, hollow charge sphere. Conducting sphere or hollow charge sphere. Let us consider it is a sphere and its radius is capital R, and charge on the surface of the sphere is this whole charge is Q. Then we can find three types of the electric field. Three types of the electric field. For point outside the sphere, for point at the surface of the sphere, and for point inside the sphere. Then we can see that for point outside the sphere, like this, means that point can here, means we can find outside at any point. Then according to Gauss, first we will draw the Gaussian surface, and Gaussian surface should be also spherical, because here charge is spherical, charge is on the spherical surface, means first point, we will take first point which is outside the sphere, and we will take second point at the sphere, point at the sphere. Then again we will draw the Gaussian surface like this. And next and last, we can take inside the sphere. We can take a point inside the sphere. It means that like this, inside the sphere. Again Gaussian surface drawn from this. It means that 3 points are considered: P, P double dash, P, P dash, P double dash. यानी कि तीन हम लोग एक स्फीयर से तीन तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं. एक आउटसाइड द स्फीयर, एक पॉइंट जब स्फीयर के सरफेस पर हो, और नेक्स्ट जब पॉइंट स्फीयर के अंदर हो. तो फर्स्ट यू शुड ड्रॉ द डायग्राम दिस. पहले ये डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लो. डू इट फास्ट. मीन्स वी विल फाइंड the electric field intensity for outside the surface, point outside the surface. A, if point outside the sphere, means it is a sphere and surface is on the charge is on the surface, point is outside like this, P. Then according to, and radius of the sphere is R, and point, the distance of point from the center of the sphere is a small r. A small r. Your mic should be off. Then a spherical surface will be drawn
ये स्फेरिकल सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया। इसका मतलब ये जो चार्ज स्फीयर है वो एक बड़े यानी कि जो इस पॉइंट से होकर के जाता है स्फीयर, उसके अंदर ये रखा गया है। यानी कि एक ऐसे स्फीयर के अंदर रखा गया है इस चार्ज को। इस इमेजिन कर रहे हैं ऐसा कि उसका रेडियस इतने के बराबर हो, उसका सरफेस इस पॉइंट से पास हो। तो ये गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन इमेजिनरी सरफेस। अब हमने जैसा कि बताया कि फर्स्ट हम लोग क्या देते हैं इस पॉइंट पर, डायरेक्शन ऑफ फील्ड आउटवर्ड ई, एंड सेकेंड एलिमेंटल एरिया। जैसे हमने पिछला बताया था एकदम डिट्टो उसी प्रोसेस पर है, एलिमेंटल एरिया। क्योंकि पहले हम एलिमेंटल एरिया के लिए फ्लक्स जानते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। एलिमेंटल एरिया dA, तो इस एलिमेंटल एरिया सरफेस पर कहीं भी एलिमेंटल एरिया या पूरा सरफेस भी लेंगे तो सरफेस पर परपेंडिकुलर क्या होता है, अलोंग द रेडियस। ये रेडियस है इसी का अलोंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसको कहते हैं एन कैप। एन कैप इज द एरिया वेक्टर, एन कैप इज द एरिया वेक्टर, इट इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, इट मीन्स दैट जीरो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, shown in the diagram electric flux, flux for elemental area dA, that is d phi elemental flux will be passed through elemental area, d phi is equal to EdA. Then after integration, the EdA cos theta, EdA cos theta, theta is the angle between electric field and normal vector. Then angle between electric field and normal vector is 0, it means that cos 0, and the value of cos 0 is equal to 1. Voice is not coming. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. You can listen. Yes, sir. Okay. Yes, sir. d phi is equal to dA. d phi is equal to E dA cos 0. 0 means angle between electric field and normal vector. We can see that both are in same direction. It means that angle will be 0. And cos 0, value of cos 0 is equal to 1. It means that d phi is equal to E dA. Then what should be total flux after integration? E is constant, dA, d phi, integration of d phi is phi, integration of dA is A. A means total area. Then what is the area of this sphere, imaginary sphere? Its radius is a small r, it means that its area will be Pi r square, sir. no 4 pi r square. It is not circle. ये एक स्फीयर है, हम लोग स्फीयर ऐसे ही ड्रॉ ही कर सकते हैं 2 डायमेंशन में, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। ये एकदम सिमिलर है, पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा है एकदम उसी के जैसा। एक्चुअली है क्या, बाद में आप देखोगे इस स्फीयर को बहुत दूर से देखोगे तो जस्ट लाइक
बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा स्फीयर को जब हम बाहर से देखेंगे, दूर से देखेंगे। तो इसलिए एक्सप्रेशन एकदम उसी तरह से है, बस वो पॉइंट चार्ज था इसलिए उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही होता था, लेकिन ये एक स्फीयर है इसलिए 3 कंसीडरेशन पॉइंट होंगे, आउटसाइड, ऑन द एंड इनसाइड। अब देखो यहां तक फ्लक्स तो जान गए, अब हम लोग जानेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू टोटल इस पर चार्ज कितना बताया, Q, इनक्लोज चार्ज Q, देन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। It means that we can see that right hand side, left hand sides are equal, then right hand side will be also equal. Equation first equal to second. Four pi r square is equal to Q upon epsilon naught. Means E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square. मीन्स, और ये किसके लिए होता था, एक पॉइंट चार्ज के लिए, और देखो उसी की तरह आया भी है। इट मीन्स दैट कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर चार्ज स्फीयर, हॉलो चार्ज स्फीयर, फॉर आउट यानी कि फॉर पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। तो नीचे एक नोट लिख लो, नोट। सर, हाँ सर वो ई के बाद आपने क्या लिखा है पीछे? कहा सर ये डायग्राम है। इलेक्ट्रिकल फील्ड दिखाए ना आउटपुट, हाँ, तो उसके पीछे क्या है? एन कैप इज नॉर्मल वेक्टर। डायरेक्शन। हाँ, एरिया का डायरेक्शन है ये। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड का ये एरिया हो गया, इसका इस तरह का फेस किधर है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ये एन कैप। पीछे का फेस तो ये एन कैप। डन। यस सर, यस सर। Then write note. Above equation represent conducting charge sphere behaves like point charge for outside point, अगर पॉइंट आउटसाइड है तो उसके लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फील्ड जानते हैं हम पॉइंट चार्ज के लिए जानते हैं। नाउ वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो ये बताओ, आप लोग से पूछते हैं, इस पर एरियल चार्ज डेंसिटी होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा कि लाइन चार्ज डेंसिटी होगा? इट इज ए स्फीयर, हॉलो स्फीयर। सरफेस चार्ज डेंसिटी वही एरियल चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल बात सही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं।
सिंस सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया 4 पाई एरिया कौन सा बड़े वाला का लेंगे कि छोटे वाले का? हाँ, किसका एरिया यहां होना चाहिए? छोटे वाले का सर। छोटे वाले का, जिस पर चार्ज रहेगा उसी का एरिया लेंगे ना। तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इट मीन्स दैट Q is equal to sigma 4 pi r square. Then we can substitute this value in this equation. Means that E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught sigma 4 pi r square upon a small r square. 4 pi cancel out. It means we can write E is equal to sigma r square upon epsilon naught and r square. Now we can see that sigma is charge density, it means that it is constant. R square is the radius of the sphere, it means that it is also constant, and epsilon naught is also constant. Then which is variable? Small r. क्यों? क्योंकि स्मॉल आर हमने यहां लिया है, बाहर तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, ये थोड़ी है कि यहीं पर ले सकते हैं, कहीं पर भी आउटसाइड द स्क्वायर, इट मींस एनी पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड। तो ये सब कांस्टेंट हटा दिया जाए तो हम लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। Done. Done. Yes. Okay. Then our next point should be Sir, at sphere. at the surface of the sphere. Very good. Means next point, second यानी B, if point on the surface of the sphere ध्यान रहे, ये थोड़ा सा बहुत ही आसानी एंड बहुत ही धीमे एक तरह से पढ़ा रहे हैं, केवल और केवल कारण इस यही है कि ऑल द चैप्टर्स आर कनेक्टेड थ्रू दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर अगर ये नहीं आएगा तो नेक्स्ट चैप्टर भी नहीं आएगा, और उसके आगे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे चैप्टर हम आगे बढ़ते जाएंगे, स्पीड भी बढ़ती जाएगी, और सीधी सी बात है कि आप भी आगे पढ़ते जाएंगे, अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपकी मतलब एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो घर पे न्यूमेरिकल्स जरूर करिए, अदरवाइज बाद में पता चलेगा कि न्यूमेरिकल से डरने लगे आप। कैपिटल आर पॉइंट एट द स्फीयर P, चार्ज like this, ये बताओ कि कोई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर थिकनेस की एक आयरन बॉडी है, 5 सेंटीमीटर, उस पर हमने पेंट कर दिया, तो उसके थिकनेस इंक्रीज कर जाएगा क्या बहुत ज्यादा कि निग्लिजिबल होगा? नहीं सर, यानी कि
negligible. निग्लिजिबल, यानी कि उसको हम इतना पतला थिकनेस उसका होता है पेंट का कि उसको हम इग्नोर कर देंगे, यानी कि उसका थिकनेस कंसीडरेशन कितना होगा 5 सेंटीमीटर ही। जस्ट वैसे ही ये समझिए, ये चार्ज हम लोग जो सरफेस पर देते हैं, तो ये चार्ज हम पॉजिटिव ऐसे देते हैं निगेटिव, तो ये तो हम अपने समझने के लिए होता है कि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। क्या ऐसे दिखता है क्या ऐसे ही? No, sir. नहीं दिखता नहीं है। यानी कि कोई ये आयरन बॉडी ले लिए या कोई भी चार्ज बॉडी ले लिए, तो उसमें चार्ज दिखता है ऊपर टंगा हुआ इस तरह का? नहीं दिखता। No, sir. हाँ, तो यहां पर ये रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो देखो सरफेस पर ही जब हमने पॉइंट लिया है, इट मींस दैट अगेन वी विल ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, यानी कि एक पॉलिश कर देंगे उस पर, तो हो गया गॉसियन सरफेस। लेकिन उस पूरे सरफेस में थिकनेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया जस्ट लाइक, उसको हमने कलर कर दिया। तो अब देखो, यानी कि गॉसियन सरफेस से जो स्फीयर बना, उस स्फीयर का और जो पहले से स्फीयर था उसके रेडियस में कोई डिफरेंस आएगा क्या? No, sir. हाँ, तो निग्लिजिबल डिफरेंस उसको इग्नोर करते हैं हम लोग, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वेरी गुड। अब देखो, तो वही पुरानी बातें, उतना एक्सप्रेशन हम लोग नहीं करेंगे। अब वहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो देखो डिस्टेंस वहां पर हमारा पॉइंट कितने डिस्टेंस पर था? R पर था, और यहां पर कितने डिस्टेंस पर है पॉइंट? कैपिटल R, यानी R इक्वल टू कैपिटल R। एग्जाम में पूछेगा केवल ये पॉइंट, तब तो पूरा एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जाम में केवल ये पूछ दे कि फाइंड, ऐसे पूछेगा एग्जाम में, कैसे पूछेगा? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑन द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी outside, inside and at the conducting sphere, ऐसे पूछ सकता है। या कभी कभी दो ही पूछ सकता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड एंड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। एट द नहीं पूछेगा, जो जितना पूछेगा उतना करना है। तो यहां पर आपको अगर पूरा तीनों कॉम्बिनेशन में पूछता है तो हमको करने की जरूरत नहीं फिर से एक्सप्रेशन उतना लंबा, E इक्वल टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है। देयरफॉर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। एंड हालांकि ज्यादा आउटसाइड और इनसाइड ही पूछता है, क्योंकि ये बहुत इजी पड़ जाता है। नेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, तो फिर से वही चीजें, यानी कि सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर मीन्स Q इक्वल टू सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर। तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, it means that E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q, on the place of Q, sigma 4 pi R square upon R square. This cancel out. It means that E is equal to 1/4 pi epsilon naught sigma 4 pi cancel out, तो इसको भी हटा दो, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, E is equal to sigma अपन एप्सिलॉन नॉट। E is equal to sigma अपन एप्सिलॉन नॉट। डन? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट
ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, ध्यान रहे ये टॉपिक पिछले साल कोविड की वजह से रिप्लेस कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन फिर से ये ऐड हो गया है। हाँ, अब पूरा फिर से सारा सिलेबस हो गया है। सर इस बार कोई टॉपिक नहीं डिलीट हुआ तो? नहीं, कोई डिलीट नहीं है। अभी तक जो भी सिलेबस आया हुआ है उसमें पूरा का पूरा है, आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हैं। यस सर। उसमें लिखा हुआ है कि एकदम सीधे सीधे कि जो पिछले साल कोविड की वजह से 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया था वो फिर से रिबैक हो गया, ठीक है, वो केवल वन टाइम के लिए ऐसा किया गया था। जबकि ये टॉपिक हमेशा, मतलब टॉपिक जब भी रहता है ये तो अक्सर आता है ये टॉपिक, ध्यान रहे, बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे आप। एग्जाम में सर? हाँ, एग्जाम में। A point inside the sphere, पॉइंट इनसाइड कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ 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 कहीं पर भी, यहाँ ले लिया या रेडियस इस पॉइंट पर ले लिया, पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल आर, मीन्स स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अगेन वी विल ड्रॉ द पॉइंट like this। तो फ्लक्स phi इक्वल टू E dA, phi इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ dA 4 pi r स्क्वायर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब ये बताओ आप लोग, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ व्हाट विल बी फ्लक्स फॉर दिस सरफेस? एनी चार्ज इज क्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस और नॉट इन दिस कंडीशन? यस सर। गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन फ्रॉम हियर, तो चार्ज तो सरफेस पर है, इस स्फीयर के सरफेस पर है, और गॉसियन सरफेस हमने अंदर यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, तो चार्ज कोई क्लोज हो रहा है क्या? नो सर, कोई चार्ज नहीं क्लोज हो रहा है। इट मीन्स दैट इनक्लोज चार्ज इज जीरो एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi is equal to q enclosed upon epsilon naught. Then what is the q enclosed? Zero. It means that according to Gauss flux is zero. That is the equation second. It means that equation first is equal to second. तो E into 4 pi r square is equal to 0. It means that E is equal to 0. तो आज से ये अच्छी तरह से जान लीजिए, एक नंबर में बार बार आता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। मेनी टाइम्स आया हुआ है ये क्वेश्चन, 0। और इसके मतलब बेसिस पर कई क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, रीजन भी पूछता है, गिव द रीजन, देन यू कैन से दैट द इनक्लोज्ड चार्ज इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इज 0।